जय हिंद और जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं आनंद रंगनाथन का वीडियो। वो बात कर रहे हैं कांग्रेस क्यों एक पैरासिटिक पार्टी है। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आराम करते हैं वीडियो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Dr. Ranganathan, the Prime Minister has used the word Parjivi, parasite. As someone, who knows a thing or two about parasites, why don't you put it in context for our viewers? Good evening, Pranesh, and good evening to my fellow panelists. The biological definition of parasite, someone who seeks its life and well-being and nourishment from a body or a system, sometimes in a symbiotic relationship, and at other times, basically a non-symbiotic relationship until that body suffers and ultimately dies and the parasite moves on. And I think you will not find a better definition or an idiom for the Congress. It's not just the community or the people who vote that the Congress has latched on and inserted itself as a parasite, and I'll come to that, the various communities. It are the parties as well. I mean, let's look at the parties first and then we'll come to the communities and make it very clear. Who are Congress's allies, Pranesh, I ask you? Congress wants to save the life of democracy in India by teaming up with Mamata Banerjee, who it blames for the death of democracy in Bengal. Is that an ally? Congress wants to rid corruption in India by teaming up with Pinarayi Vijayan, who it blames for 100 crore camera scam in Kerala. Is that an ally? Congress wants to purge sectarianism in India by teaming up with Bhagwant Mann, who it blames for appeasing Khalistanis in Punjab. Some ally. Congress wants to rid terror appeasement in India by teaming up with Stalin, who it blames for felicitating Rajiv Gandhi's killer in Tamil Nadu. Is that an ally? Congress wants to remove sleaze from India by teaming up with Jharkhand and Mafia Raj, when Akhilesh was the one who was accused by the Congress for exactly those two things. Let's talk about Kashmir. Congress wants to end separatism in India. Congress supports the abrogation of 370. And who has it teamed up with? With National Conference, whose single point agenda was to remove the abrogation of Article 370. Is that a fruitful ally? Now let me come to the parasitic nature of Congress when it comes to voting communities. Let's not even go about the fact that Congress is anti-Hindu and Hindu-phobic. There are ample examples of that. But far from placating the Hindus, the Congress has got into the body politic by doing appeasement of Muslims. Have we forgotten about the Shah Bano judgment? Have we forgotten about the Places of Worship Act, which is not just blatantly anti-Hindu? Have we forgotten about the Waqf Act that is blatantly pro-Muslim and anti-Hindu? These are things that are the cornerstone of what a parasite behaves. Parasite goes in, eats the body politic, and sometimes comes out, but at most times it can also survive by not thriving, but surviving by slowly seeping in and taking whatever it wants, its life form, from this body politic. That is exactly what Congress does. You cannot find a more apt description. आशुतोष जी, कल के रिजल्ट के बाद देखिए जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने सीट्स डिक्लेयर कर दिए 6, ना बातचीत हुई ना कुछ, 6 सीट्स डिक्लेयर कर दिए उन्होंने 10 बाईपोल सीट्स में से। आप कह रही कि हमें रहने दीजिए, हाथ जोड़ लिया आम आदमी पार्टी ने, बोला हरियाणा जैसा नहीं होने देंगे हम दिल्ली में। महाराष्ट्र में भी ऐसी बातें कही जा रही हैं। तो कांग्रेस क्या है, परजीवी है, कुछ लोग कह रहे हैं पनौती है। So, as we were just hearing the definition of parasite, who is a bigger parasite than Narendra Modi, who lived off L.K. Advani ji and Murli Manohar Joshi ji and threw them away after he had no use for them, after climbing to the top. So he's the best example of the political parasite there has ever been in India. What you speak about is, let's start with Haryana. In Haryana, Congress was fighting. It was actually BJP which was defending itself, and Congress's vote share has risen by 11%. And the difference between Congress
and BJP in vote share is just 0.8%. So to say that there has been some miracle in Haryana, it's just Narendra Modi trying to hide his embarrassment that a state where Modi ki guarantee could not get him 10 out of 10 seats. He's trying to hide that. He's trying to hide his embarrassment that despite his mutilating J&K into 3 parts and removing Article 370 and being the last, I mean, he was in a part of the PDP BJP government, if you remember, was the last government there. So another state has become BJP Mukt. It is to hide those things that today again he's like a parasite trying to live off Congress. Right. मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि जब भी हमारा वीडियो है तो सबसे पहले आप लोग देख सकें और वीडियो पर रिएक्ट जरूर करिए। तो फिर ये देखिए, इस वीडियो में आनंद रंगनाथन बात कर रहे हैं जो इलेक्शन हुआ था हरियाणा में और जम्मू एंड कश्मीर में उसके ऊपर, और कांग्रेस क्यों एक परजीवी पार्टी है, पैरासिटिक पार्टी है, किस किस के बदन में चूस के अपना जो एक वर्चस्व है वो प्राप्त करती है ये पार्टी, उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम हरियाणा के ऊपर बात करते हैं। हरियाणा में तो आपने देखा ही होगा क्या हुआ था, बिल्कुल एक मजाकिया तरीके से वो इलेक्शन जा रहा था। स्टार्टिंग में तो सब लोगों को देखा ही होगा आपने, न्यूज़ चैनल्स और जो बहुत सारे जो पंडित्स हैं, जो एग्ज़िट पोलस्टर्स हैं, सब लोग तो स्टार्टिंग में बोल रहे थे, आप लोगों को पता ही चला होगा 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन 4 जून के बाद सब लोग बोल रहे थे, सारे के सारे न्यूज़ चैनल्स, पंडित्स, एग्ज़िट पोलस्टर्स उस टाइम से बोल रहे थे कि बीजेपी हरियाणा जरूर हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी। और उस हार का भविष्यवाणी उतने पहले ही कर दिया था कि इन लोगों को लग रहा था कि ये जो लोकसभा का जो एक वेनिंग ऑफ नरेंद्र मोदी करिश्मा है ना, वो इधर भी इफ़ेक्ट होगा उसका। नरेंद्र मोदी का आपको लगता होगा, तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा लगता है कि करिश्मा वेन हुआ है, पर एक बंदे का करिश्मा ऊपर भी जा रहा है, उस पर ऊपर, वो है योगी आदित्यनाथ। उनके बारे में बात करेंगे हम। तो फिर ये जो लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद सारे के सारे लोग यही बोल रहे थे कि कांग्रेस इज़ गोइंग टू द राइज और राहुल गांधी का राइज होने वाला है। उसका पृष्ठभूमि लगा के लोगों ने एक बहुत बड़ा सा नैरेटिव जोड़ दिया था कि कांग्रेस इज़ गोइंग टू विन हरियाणा, और वो ऐसे वैसे नहीं जीतने जा रहा था, बहुत स्पष्ट बहुमत, और उससे भी ज़्यादा स्पष्ट बहुमत से भी ज़्यादा सुनामी, वेव, साइक्लोन, ऐसे कुछ बाढ़ आने वाला है बिल्कुल उन लोगों का, पार्टी का, ऐसे बोल रहे थे लोग। और ख़ासकर उनकी जो मंडली है कांग्रेस की, एक प्रशंसा योग्य मंडली है जो सोशल मीडिया में बैठी हुई है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा ये सपोर्ट किया है कांग्रेस को। कांग्रेस का जो नैरेटिव था कि इलेक्शन में 2024 लोकसभा में कि बीजेपी इज़ गोइंग टू रिमूव द रिजर्वेशन को ख़त्म करने वाला है, ओबीसी, SC ST का, उसको पूरी तरह ग्राउंड तक लेके आने वाली एक चीज़ है वो उनकी सोशल मीडिया टीम है। उन लोगों ने भी यही एक बहुत बड़ा हवा फड़ा दिया था, और उसके हवा का एक चस्का आप लोगों को देखा होगा कि एग्ज़िट पोल में भी यही दिखा। जिस एग्ज़िट पोलस्टर्स ने 2024 लोकसभा इलेक्शन में 400 पार जो बीजेपी की घमंड के तरीके से एक बयान दिया था, उस घमंड को ये कांग्रेस में भी लगा रहे थे कि कांग्रेस वाले लोग बोल रहे थे 70 पार, 60 पार, 50 पार। उस 70-60 पार को ये वेद वाक्य लगा के मान ले रहे थे और उसके ऊपर नंबर लगा रहे थे। जैसे एक बहुत विश्वसनीय पोलस्टर है एक्सिस में इंडिया के, प्रदीप गुप्ता, उनका तो बहुत जो पोल्स हैं वो सही के ऊपर सही इतना सही हो गया था कि जो इंडिया टुडे, आज तक वाले जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो बोल रहे थे एग्जैक्ट पोल्स, इनके पोल के कारण इन्होंने दिल्ली,
जो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन है, और भी बहुत सारे इलेक्शंस हैं, मध्य प्रदेश भी हो, 2000 जो 23 वाला इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में उन्होंने जो दिशा है वो सही दिया था पर एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाए थे। और भी बहुत सारे इलेक्शंस में ऐसे ही उन लोगों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा था। उस ट्रैक रिकॉर्ड को पूरी तरह नष्ट कर दिया 2024 इलेक्शन ने, और उसके बाद ये हरियाणा इलेक्शन है। हरियाणा इलेक्शन में इन लोगों को लग रहा होगा कि जो कांग्रेस पार्टी इज़ ऑन द राइज, तो फिर से राइज में ही होगा। और ये एग्ज़िट पोल्स बिल्कुल रॉन्ग रहे। कैसे रॉन्ग रहे आप लोगों को पता होगा। 8 बजे से 9 बजे तक तो पोस्टल बैलेट होते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, IAS IPS प्यून, जो भी तहसीलदार वहसीलदार जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उन सब लोगों ने कांग्रेस को जमा वोट किया, दबा दब वोट दिया। और उस वोट के बाद जो नंबर थे वो थे कांग्रेस का 70 से 60 से 70, कांग्रेस का, बीजेपी का 20 से सबसे कम 9 था, 9 या 8। तो फिर इतने नीचे चले गए थे बीजेपी वाले। और जब पोस्टल बैलेट का नंबर वेन होने लगा 9:30 बजे तक, तो बीजेपी अब गेन करके 25-26 तक पहुंचा। 10 बजे तक 30, 10:30 बजे तक 35-36, 11 बजे तक बीजेपी एंड कांग्रेस इज नेक टू नेक है। बिल्कुल टक्कर की लड़ाई चल रही है। और टक्कर की लड़ाई में बीजेपी धीरे धीरे वो 11-15 होते हुए बीजेपी आगे निकल गई और कांग्रेस पीछे निकल गई। और पूरी तरह उसके बाद शाम 5 बजे तक, जब तक रिज़ल्ट नहीं आया, तब तक बीजेपी अहेड रही। सबसे ज़्यादा बीजेपी उसमें रही 54 में। और ये सब लोग गाली दे रहे थे, बोल रहे थे कि नायब सिंह सैनी जो हैं वो एक ग्रहण ला रहे हैं बीजेपी के ऊपर। ऐसे ऐसे वाक्य चिपकाया था बीजेपी के ऊपर। और इसके ऊपर ही मिस्टर आनंद रंगनाथन है वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है। वो जब भी बीजेपी के साथ आमने सामने लड़ाई करती है तो वो हार जाती है। जैसे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। जब दूसरी टाइम एंटी इनकम्बेंसी को ब्रेक करना हो तो फिर वो तो 2011 के बाद कांग्रेस ने एक भी स्टेट में लगातार 2 बारी जीत ही नहीं पाई है। 2011 था लास्ट टाइम। तो फिर ये है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड, जो भी एक हवा बना दिया था कांग्रेस के जो एक समर्थक लोग थे कि बीजेपी इज़ ऑन द डाउन, नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, वो पूरी तरह ओवरटर्न हो गया इस इलेक्शन में। और लोगों को भी पता चल रहा है कि ये जो कांग्रेस का एक परजीवी एटीट्यूड है, जो DMK के साथ तमिलनाडु में बहुत सारा सीट जीता जाता है और बहुत सारे दूसरे स्टेट्स में भी गठबंधन बना के सीट्स जीता जाता है, जैसे यूपी में, जैसे बिहार में, ऐसे झारखंड में। ऐसे सारे स्टेट्स में ये परजीवी है, पैरासाइट्स हैं। वो दूसरे पार्टी के जो एक वो है इनका हैंडीकैप बना के, जैसे इसी इलेक्शन में कश्मीर का इलेक्शन हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर का। जो जम्मू के जो भी हिंदू सीट्स हैं उसमें से एक भी नहीं जीते वो। और कश्मीर में जो 5 सीट थे जो NCP ने दिया था कांग्रेस को, उस 5 में से 5 जीत गए मुसलमान सीट्स के, एक भी हिंदू सीट नहीं जीता। ताकि जो एक मुसलमान पार्टी बोलते हैं अपने आप को, सेकुलर पार्टी नहीं बोलते हैं, वो है NC, वो भी जम्मू में 1 सीट जीत गए बीजेपी के अगेंस्ट, पर कांग्रेस नहीं जीता। तो फिर ये एक बयान है। और यही हो रहा था, देखा होगा आपने कि ये जो परजीवी पार्टी है वो ऐसे ही पूरे देश में अभी उनकी हंसी मर रही है, क्योंकि ये जलेबी का फैक्ट्री ऐसे ऐसे बयान दे रहे थे। तो फिर हमें जब हारे तो फिर पूरा देश में मजाक उड़ गया फिर से। जो एक सीरियस लीडरशिप बनाने का एक दौर चल रहा था कांग्रेस के अंदर, जो मिस्टर राहुल गांधी को एक बिल्कुल सीरियस LOP, जो एक कठोर तरीके से बोलते हैं करप्शन के अगेंस्ट, कास्ट के अगेंस्ट, और एक उनकी तरीके से एकता के ऊपर बोलते हैं। उनका पूरा जो नैरेटिव था वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया इस इलेक्शन में। और जो योगी आदित्यनाथ का एक नैरेटिव था कि
हिंदू एकजुट हो रहे हैं फिर से, बटेंगे तो कटेंगे, यही अभी एक वाक्य है जो सब लोगों के मुंह में है और वही चल रहा है आगे। तो कांग्रेस का अभी जो ये एक कास्ट में हिंदुओं को बंटवाने का एक सिलसिला है वो पूरी तरह नीचे जाएगा। अब जैसे नरेंद्र मोदी ने भी अभी पकड़ लिया है, जो योगी आदित्यनाथ ने बोला था, मोहन भागवत ने भी पकड़ लिया, पूरा देश पकड़ रहा है। आगे क्या क्या होता है देखते हैं दोस्तों। तो फिर वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।